Praise the Lord. What a great joy once again together worship our living God. ये बहुत बड़ी आनंद की बात है, परमेश्वर ने फिर से एक और अवसर दिया है ताकि हम मिलकर परमेश्वर को आराधना कर सके. I believe God is so good to us. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कितना भला है हमारे जीवन में, और मैं भी ये भी विश्वास करता हूँ आज हमारी आराधना में पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी उपस्थिति हम लोग महसूस करना जा रहा है. And I believe that you are going to enjoy the greater presence of the Lord as we are together worshiping the Lord in our homes, in our houses, and wherever, in whatever place we are. And I pray that may the Lord speak to us, may the Lord strengthen us, may the Lord touch our hearts, touch our lives and transform our lives for a greater glory. Hallelujah. आइए हमारे आराधना की शुरुआत में प्रार्थना के साथ let us together join the worship. Let's close our eyes and look to the Lord in prayer. Our dear gracious Heavenly Father, we want to thank you. We welcome you, Lord, from the beginning till the end of this service. May the Holy Spirit guide us and lead us. Lord, we want to give you all glory and honor to you. Lord, you deserve the glory and the honor. There is no one like you, Lord. Hallelujah. Father, thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for each and everything that you have planned and purposed for our life. Father, in this morning, as we together worship our living God, we submit this entire service in the hands of the Lord. Every session of this service, Lord, the worship, the psalms and the word, everything be a great blessing into each one of our life. हम सबके जीवन में आज की आराधना बहुत बड़ी हालेलुया आशीष के कारण बनने के लिए प्रभु तू हम सबको सहायता कर. प्रभु जी, Lord, from the small child to the elder ones, Lord, whoever is watching us, Father, we pray, may the presence of the Lord saturate our lives and our families and our church. We give all glory and honor to you, Father. May the Holy Spirit take complete control, and may the presence of God, Lord, be saturated our families, our homes, our hearts, and our lives, Father. We give all glory and honor to you, Father. In Jesus' most precious name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. Let us together prepare our hearts to worship our living God. आराधना के लिए अपने आप को हम समर्पण करें. आइए हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर को आराधना करें. Lord, thank you for giving us this wonderful opportunity to gather as a family virtually in your presence, oh Father. Hallelujah. Lord, as we come closer to your presence, we wait on you, Lord. We seek your face. And Lord, we want to hear from you this morning, oh Lord. Hallelujah. Lord, bless the worship session. Bless the word of God. And Father God, create in us a heart, Lord, that is seeking to hear from you, Father God. परमेश्वर, आपके सुनने के लिए परमेश्वर हमारे हृदय को आप तैयार कर. हालेलुया. सारा आदर महिमा हम आप ही को देते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुन और ग्रहण कर प्रभु. Amen, amen, amen. Hallelujah. We welcome each and everyone who have joined us this morning. हमारे साथ जुड़े हुए आप सबको परमेश्वर के नाम से स्वागत करते हैं. हम बहुत खुश हैं कि आप आज भी हमारे साथ इस YouTube लाइव के द्वारा जुड़ सकें, जुड़ पाए. हालेलुया. परमेश्वर की स्तुति हो. आप जहाँ कहीं भी हैं, आपसे मैं नम्र निवेदन करूँगा कि आप अपने जगहों पर खड़े होकर उस परमेश्वर को स्तुति करें और उसको गीतों के द्वारा उनको महिमा करें. Hallelujah. I request you all to rise in your places as a matter of giving honor and glory to our God. Hallelujah. 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 Jesus Christ will lift your name in our places at this very moment as we join and sing and lift your name, oh God. Hallelujah, hallelujah. Jesus, the name above all names, beautiful Savior, glorious God, Emmanuel, God is with us, beautiful Savior, living word. Sing Jesus.
wonderful Savior, glorious Lord, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living one, blessed Redeemer, living one. कुछ देर अपने आवाजों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। ओ यीशु मसीह, तेरे नाम की स्तुति हो, ओ तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। रिबाला शंतना रबो रिबियाला नरहनंत रबो रिबिये शिरे रबाला रयांतनरे, परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करते हुए, ओ हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के हालेलुया उस पवित्र आत्मा की हालेलुया सामर्थ को चाहते हुए अपने हृदय से हालेलुया एक तलाश के साथ हालेलुया परमेश्वर परमेश्वर हालेलुया पवित्र आत्मा आपके उपस्थिति को, अपने सामर्थ को हमारे परिवार में परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर हालेलुया तू दिखा। यीशु सब नामों में श्रेष्ठ है, दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया 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 सब तेरे हाथों के, हम सब तेरे हाथों की रचना। यस लॉर्ड, रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न दे। हम सब तेरे हाथों की रचना। हालेलुया, तेरी करुणा, एक समर्पित हृदय के साथ हालेलुया लॉर्ड, we need your heavenly protection in our places this morning. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shira baralariantonare ribana ravalariantonare baushira rabalariantore. Hallelujah, 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 hallelujah. परमेश्वर तेरी उपस्थिति, ओ तेरी उपस्थिति, हालेलुया। ओ चंगा करने वाला उपस्थिति, हालेलुया। सामर्थ देने वाला उपस्थिति, हालेलुया, 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 हालेलुया। जंजीरों को तोड़ने वाला उपस्थिति परमेश्वर। Oh, we worship you. अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर
हालेलुया। परमेश्वर हृदय के गहराई से, हृदय के गहराई से, हृदय के गहराई से, ओ आमेन, 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 आमेन। जोर से ताली बजाकर उस परमेश्वर के लिए, ओ हृदय के गहराई से एक मुस्कुराहट के साथ, हालेलुया, 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 praise God, amen, hallelujah. It's indeed God's grace that God has kept us safe and sound through this season, hallelujah. ये सचमुच में परमेश्वर की हालेलुया करुणा है जो हमें ऐसे एक समय पर भी हालेलुया एक साथ हालेलुया हमको सुरक्षित बना के रखा है। हालेलुया, कितना महान है और कितना अद्भुत है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, wherever you are, you have joined us from, we welcome you again in God's presence this morning, and we request you to kindly stand in your places and to sing and shout for joy, because by His grace we are healed and we are here this morning. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Come on, clap your hands and sing. Who shakes the whole earth with holy when breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Come on, clap your hands and sing. Oh Lord, this is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who brings our chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who rules the nations? Who rules the nations with truth and justice? Shines like the sun in all of His brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I would be set free. I sing for all that you've done for me. We worship you. तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर
पहला प्यार के गायन से सब मिलकर परमेश्वर तू अवर्णित है लॉर्ड यू आर एक्सेलेंट एंड ब्यूटीफुल फिर से तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तेरी स्तुति प्रशंसा हो यस लॉर्ड ताली बजाकर आवाज़ों को उठाकर एक खुशी के साथ हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा मेरी निराशाओं में आशा बना दो मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु तू अवर्णित है तू सुंदर है हाँ परमेश्वर तू सुंदर है पहला प्यार तू मेरा प्यार है अवर्णित वो तू मेरा प्यार है सुंदर तू मेरा प्यार है परमेश्वर पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी स्तुति परमेश्वर तेरी स्तुति मैं गाता ही रहूंगा ओ हर पल तेरी महिमा तेरी प्रशंसा होते रहे तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तू अवर्णित है तू सुंदर है पहला पहला तू सुंदर है तेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार यस 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 परमेश्वर तू अवर्णित है मेरा पहला पहला प्यार है ओ हालेलुया Praise the Lord. Let us open up our Bibles together to Psalm 146. Amen. While wherever you are, जहां पर भी हो, मैं निवेदन करूंगा आप लोग अपने स्थानों में खड़े होकर आइए हम लोग मिलकर इस भजन संगीता को पढ़ें. Psalm 146. Hallelujah. Psalm 146. हम लोग एक साथ मिलकर पढ़कर हालेलुया प्रभु को आदर करें. Praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. While I live, I will praise the Lord. I will sing praises to my God while I have my being. Do not put your trust in princes, nor in the sons of man, in whom there is no help. His spirits departs, he returned to his earth. In that very day, his plans perishes. Happy is he who has the God, the Jacob of his help, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and the earth, the sea and all that is in them, who keeps truth forever, who executes justice for the oppressed, who gives food to the hunger. The Lord gives freedom to the prisoners. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord raises those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the strangers. He relieves the fatherless and the widow, but the way of the wicked he turns upside down. The Lord shall reign forever, you God, O Zion, to all generation. Praise the Lord. Hallelujah. May God bless you by reading and hearing the word of God. Hallelujah. आज के भजन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद करे, परमेश्वर को महिमा दे. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, while I live, I will praise. जब हम जिंदा हैं, मैं परमेश्वर को आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा. ओ ये जीवन जो परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है, ये भी प्रभु की दया
के कारण है। ओ ये हमने खड़ा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने हमें आज परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए अवसर दिया है। It's because of His grace, it's because of His favor, it's because of His blessing alone that we are together here and praising and singing and worshiping the living God. The psalmist says, while I have my being, while I am alive, oh I will praise my God. मैं जिंदा है, जब तक मेरे जीवन में मेरे लाइफ में श्वास है, तब तक मैं परमेश्वर को आराधना करूंगा, मैं परमेश्वर को स्तुति करूंगा। I will not put trust in प्रिंसेस। हम इस दुनिया के कोई चीज पर भरोसा ना करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। वो जो जितना लोग आज परमेश्वर को भरोसा करते हैं, ये कहना चाहते हैं परमेश्वर की आत्मा, आज पवित्र आत्मा ये कहना चाहते हैं, तुम कभी भी लज्जित नहीं होगा। We will never be ashamed, those who put trust in the Lord. Hallelujah. Happy is he, the fifth word, पांचवा पद इसे लिखा है, happy is he who has the God of Jacob for his help. Who is our help in this morning? Hallelujah. Who is our help in this new year? Who is our help? Let God be our help. Hallelujah. Stop looking here and there for help. Let's look unto the Lord and trust Him and ask God and make God as our help. Make God as our, hallelujah, stronghold, so that we can move forward, and whatever happens, God will never leave us alone. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In the 8th verse it says, the Lord opened the eyes of the blind. The Lord raises those who have bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watch over the strangers. Hallelujah. The Lord opens the eyes. Oh, hallelujah. Our God is a miracle working God. कितना लोग इस बात को विश्वास करते हैं, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, अंतों को आंख देते हैं। ओ हालेलुया, जो बंद हुआ है उसको खोलने वाला परमेश्वर है। Oh, that something is closed, our God is a specialist in opening. Hallelujah. Thank you Jesus. And He raises those who are humble. जो नम्र हैं उसको परमेश्वर उठाते हैं। तो He love the righteous, जो धर्मी हैं उसको प्रभु प्यार करते हैं। Oh, and Lord watches over. Oh, hallelujah. You may be a stranger for others. दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें संभालता है। I watches over you. मैं देखता हूँ। Hallelujah. In our family, in our life, in every day of this year, let God reigns in our lives. Hallelujah. Let's close our eyes and say to God, Father, Lord, we praise you. I praise you. As long as I'm alive, as long as I have my being, I will worship you, Lord. Hallelujah. Let's ask help from the Lord. हमें मदद चाहिए परमेश्वर। हर दिन प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरी काम जॉब करने की जगह में, मेरे पारिवारिक जीवन में, हमारे हर एक बात में, जीवन की हर एक अवस्था में प्रभु मुझे तेरी महिमा चाहिए, तेरी मदद चाहिए, तेरी उपस्थिति और अनुग्रह चाहिए। Hallelujah. Let's pray to God in this morning. Father, we ask for your help, Lord. Let's close our eyes and look to the Lord in prayer and pray to God. Father, in this morning, as we together seek you, Lord, may the presence of the Lord help us and guide us and lead us. Holy Spirit, take complete control of our service. Thank you, Lord, for this time, Lord. You are our help, Lord Jesus. Hallelujah. In the time of, hallelujah, troubles, you are our present help, Lord. We welcome you. We give all glory and honor to you, Father. Lord, may the Holy Spirit guide us. May the Holy Spirit lead us. Take, Father God, hallelujah, all the glory and honor. परमेश्वर सारा स्तुति की, आदर की, महिमा की योग्य केवल तू है परमेश्वर। आज सुंदर समय प्रभु हम मिलकर तेरे नाम को स्तुति और आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा, हालेलुया, तू पूरा नियंत्रण ले प्रभु, हमारी आराधना का पूरा नियंत्रण ले प्रभु। लॉर्ड, हमारे जीवन में, हमारे हालेलुया हर इस परिस्थिति में प्रभु हम किसी और को भरोसा करने ना दे प्रभु, हम आपको भरोसा कर सके परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, वी वांट टू, oh hallelujah, make you as our stronghold. परमेश्वर, हम आपको भरोसा करने के लिए सहायता कर, हमारे साथ चले परमेश्वर। तू हमारे लिए नया रास्ता खोले परमेश्वर, तू हमें उठाए प्रभु। हालेलुया, तू हमें खड़ा करे परमेश्वर। You watch over our life, Lord Jesus. Hallelujah. And let the Lord reign through our life forever, Father. सारा आदर महिमा स्तुति हम आपको देते हैं। निरंतर प्रभु हम आराधना के लिए और जा रहे परमेश्वर।
परमेश्वर हमारी आराधना को अगुवाई करे। पवित्र आत्मा हमारे जगहों को प्रभु तू हिलाए तेरी उपस्थिति से परमेश्वर, हमारे जीवनों को तू हालेलुया सहायता कर। हम मिलकर तेरी उपस्थिति को महसूस करने की सहायता कर। सारा आदर महिमा स्तुति हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम समान पे सुनो प्रभु। आमीन आमीन आमीन। Let us together prepare our hearts to worship oh God. हालेलुया। आइए हम लोग मिलकर और गीतों को गाकर परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया। अपने आवाज़ों को उठाकर आत्मा में होकर ओ हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की सामर्थ हालेलुया आपके जगहों पे अभी कार्य कर रहा है। ओ हालेलुया इस विश्वास के साथ ओ परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए परमेश्वर तेरी धन्यवाद। हालेलुया। दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हृदय के गहराई से हालेलुया हालेलुया। तेरे समान कोई नहीं है। यस लॉर्ड। कोई नहीं तेरे समान, तेरे समान कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं तेरे समान। आसमां में भी पृथ्वी पर भी तेरे समान कोई नहीं है। आसमां में भी पृथ्वी पर भी तेरे समान कोई नहीं है। तेरे समान कोई नहीं है। ताली बजा कर यस। कोई नहीं तेरे समान, There is none like you। तेरे समान कोई नहीं है। खुशी के साथ कोई नहीं तेरे नाचते हुए झूमते हुए आसमां में भी पृथ्वी पर भी तेरे समान कोई नहीं है। आसमां में भी पृथ्वी पर भी तेरे समान कोई नहीं है। यीशु तेरे समान कोई नहीं है। कोई नहीं तेरे समान, तेरे समान कोई नहीं है। कोई नहीं तेरे समान। आसमां में भी पृथ्वी पर भी तेरे समान कोई नहीं है। आसमां में भी पृथ्वी पर भी तेरे समान कोई नहीं। यीशु यीशु तेरे समान कोई भी नहीं होगा। आसमां में भी पृथ्वी पर भी कोई भी नहीं होगा। यीशु तेरे समान कोई भी नहीं होगा। आसमां में भी पृथ्वी पर भी कोई भी नहीं होगा। तेरे समान, तेरे समान कोई नहीं है। कोई नहीं तेरे समान, तेरे समान कोई नहीं है। कोई नहीं तेरे समान। आसमां में भी पृथ्वी पर भी तेरे समान कोई नहीं है। आसमां में भी पृथ्वी पर भी तेरे समान कोई नहीं है। ताली बजाकर और जोर से ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हृदय के गहराई से परमेश्वर तेरे समान कोई नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रबला शंतने रिबियांतर बो रबला नियांतर बेशी रमला नियांतर रे। हालेलुया हालेलुया। Lord, to comfort me, hallelujah, to provide me, to cover me under your presence. Lord, there is no one else like you. Hallelujah 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 hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Just as we sang now, the situations that are standing like mountains and red seas in front of you. Hallelujah. लाल समुंदर के समान, Hallelujah, चट्टान के समान अगर आपके सामने
जो भी परिस्थितियां खड़ी है, हालेलुया, उसको तोड़ने के लिए, उसके भीतर से रास्ता निकालने के लिए मेरा परमेश्वर काबिल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबला शंतना रबौरी बियांतना रलरियांतरे रिबिया शिरे रबलरियांतनरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We can see, hallelujah, in Exodus, Moses asks, God, if your presence does not go with me, I will not go. We will never leave from this place. Hallelujah. परमेश्वर अगर आपके उपस्थिति अगर हमारे साथ नहीं जाता है, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ इस जगह से हम लोग नहीं जाएंगे। Hallelujah. How many of you will say this morning, Lord, I need more and more of your presence this morning. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, fill our houses, fill our lives with abundance of your presence, oh God. Hallelujah. Lord, there is none like you. परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। ओ तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर। यस, हालेलुया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक कलीसिया के रूप में इकट्ठे हुए हैं, हालेलुया, आपके हृदय के गहराई से उस परमेश्वर के ओर देखकर आप कहिए, परमेश्वर आप ही मेरा भरोसा है, परमेश्वर आप पर ही मेरा भरोसा है। चाहे आप किसी के ऊपर अगर हालेलुया, you might have been expecting something from someone this morning and that person might have refused to you, हालेलुया। चाहे आप जो भी व्यक्ति आपके लिए वादा किया, आपके लिए प्रॉमिस किया है, that person might have not able to keep the promise, but when you trust in the Lord, my God will never leave you alone. Hallelujah. तेरे जैसा कौन है, यस, सब मिलकर, जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो। तू ही मेरा आधार है, मेरे जीवन का स्वामी। सब मिलकर हृदय के गहराई से प्रभु, हालेलुया, समर्पण के साथ, हालेलुया। व्यर्थ हो जाएगा एल शदाई। दोनों हाथों को सिर की ओर उठाकर, ओ द स्वीट प्रेजेंस, ओ हालेलुया, परमेश्वर की ओ मधुर उपस्थिति, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तू। परमेश्वर तू कितना अच्छा है, परमेश्वर मेरे आंसुओं को पोंछने वाला है। ओ तेरे आंखों की पुतली जैसे मुझे पाकर, ओ कितना मधुरतम है परमेश्वर तेरी उपस्थिति। ओ पुतली जैसे जीवन भर, दोनों हाथों को उठाकर एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ
Hallelujah. New doors, new opportunities, new provisions. We worship you, El Shaddai. Rikana Rabashira Malala Malariantare. Binana Maladibi Shikana Malala Oh, El Shaddai Aradhana. Elohim Aradhana. Adonai Aradhana. Yeshua Aradhana. Yeshua Ribala Ramana Rala Shira Barali Antonare. आत्मा में होकर अपने आवाज से उठाकर oh the sweet presence never misses. Hallelujah. Don't miss this sweet presence. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we declare that you are the El Shaddai of our family. Oh, you are the Adonai of our family. Oh, you are Elohim of the family, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, as a family we come in your presence. परमेश्वर एक कलीसिया के रूप में हम परमेश्वर एक कुटुंब के रूप में आपके सामने हम आते हैं. हम झुक कर कहते हैं तू ही अडोनाई है. Oh, Rabashi Ramanalariantore, Ribiantoro, Rabalashi Ramanadiantare. Rikana Raboshina Ramanalariantana Raboshira Rabalariantare. परमेश्वर तेरे उपस्थिति के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु. हालेलुया रालाबशंतना रबयांतनारे. हालेलुया हालेलुया. मेरे साथ कहिए परमेश्वर तू ही मेरा आधार है. हालेलुया. मेरे जीवन का आधार तू ही है. मुझे कहिए मेरे जीवन का आधार तू है. मेरे जीवन का आधार तू है. मेरे परिवार के आधार तू है. परमेश्वर जो मैं नौकरी करता हूं वो मेरा आधार नहीं है. लॉर्ड यू आर माय स्ट्रॉन्ग होल्ड. हालेलुया हालेलुया. यू अलोन are my stronghold, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हालेलुया हालेलुया अपने आप को नम्र बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति में ओ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा. प्रभु यस यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा. फिर से गाएंगे आप प्रभु प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा. मुझसे हो तेरी महिमा. तेरे भवन में हम आते हैं. यसो हृदय के गहराई से और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं दोनों हाथ उठाकर आदर करते हुए प्रभु
से गाएंगे मुझसे हो तेरी महिमा, ओ मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी। परमेश्वर तेरे उपस्थिति में नम्र बनाकर मैं पूछता हूँ, मुझसे हो तेरी महिमा। Let my life declare your glory, O God. Hallelujah. Hallelujah. Father, thank you for your presence, your mighty anointing in our places at this very moment, O God. Lord, thank you for touching our hearts. Thank you for speaking to us, O Father God, through this worship. Hallelujah. परमेश्वर हमारे दिलों को छूने के लिए, हमारे साथ बातें करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर, हम फिर से कहते हैं आपके उपस्थिति में, आपके चरणों में आकर कि आप ही हमारा भरोसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Lord, we surrender our life this morning, O God. Lord, prepare our hearts to receive the heavenly manna that you have kept for us this morning. परमेश्वर, आपके उपस्थिति में हालेलुया जो स्वर्गीय मन्ना जो है आप हमारे लिए आज रखे हैं परमेश्वर, आज आप तैयार किए हैं उस स्वर्गीय आहार के लिए। परमेश्वर, हम आपके सामने झुकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, हमारे दिलों से बात कर। हालेलुया। परमेश्वर, हमारे हालेलुया जीवन के लिए आशीष का कारण बने परमेश्वर उस वचन, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए एक आशीष का वचन परमेश्वर आपके सन्निधि से परमेश्वर हम चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर महिमा परमेश्वर हम आप ही को देते हैं। लॉर्ड, वी गिव ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर टू यू अलोन, ओ गॉड। यीशु मसीह, आपके नाम ऊंचा उठाएं परमेश्वर। हालेलुया। नाम को ऊंचा उठाते हैं। जीसस क्राइस्ट विल लिफ्ट एंड मैग्निफाई योर नेम इन आवर प्लेसेस। हालेलुया। आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जीसस नेम वी आस्क एंड प्रे। आमेन, आमेन, आमेन। It's an honor and privilege to have Reverend Ashish John in our midst to share God's word. ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आज परमेश्वर के दास आशीष ई जॉन, रेवरेंड आशीष ई जॉन हमारे बीच में है प्रभु के वचन को बांटने के लिए। थैंक यू सो मच डियर pastor for accepting our invitation and take your time and to share God's word with us. प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आज इस समय निकाल कर हमारे लिए इस वचन को लेकर हमारे बीच में आए हैं। He is a mighty man of God. He is serving as an Assemblies of God pastor in Jaipur service, and I believe that today God have a special word for us. May God speak to us through dear servant of God. परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करे और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर आशीषित करे। आइए, prepare our hearts to hear from God's word. Let us clap our hands and welcome our dear servant of God, Reverend Ashish John, to share God's word with us. Praise the Lord और जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं एक और बार आप लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सुंदर मौके के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि इस तरीके से आपके सम्मुख आ सके। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. I want to thank the Lord for this beautiful opportunity that the Lord has given to me to come in front of you in such a manner. Today we are going to read from the Word of God, study from the Word of God, and we are going to hear what the Lord wants to speak to us. आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ने वाले हैं और हम सुनने वाले हैं कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। लेकिन आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले कुछ क्षण हम लोग प्रार्थना में बिताएं। Father God, we want to thank you for this beautiful time that you have given to us, Lord. We want to thank you for all your manifold blessings that you have showered in our lives, Lord. प्रभु, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर इन सारी अच्छाइयों के लिए, भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। Lord, this is a new year and you want us to move ahead with strength
and grace, Lord. प्रभु ये नया साल है और आप चाहते हैं कि हम लोग प्रभु पूरे सामर्थ्य के साथ हम लोग आगे बढ़ सकें. Lord, we pray that you give us the grace. Lord, I pray that you give us the wisdom. प्रभु आप हमें ताकत और सामर्थ्य देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. And we also pray that you open the doors for us so that Father God we may do your work. प्रभु आप हमारे लिए रास्ते खोलें ताकि हम आपके लिए कार्य को कर सकें. As we study your word, Lord, I pray in the name of Jesus that we may be able to learn your word, we may understand your word, Lord, and you give us the wisdom to walk according to your word. हमें बुद्धि दीजिए प्रभु कि हम आपके वचन के अनुसार चल सके और आपके नाम को महिमा दें. सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से. Amen. Amen. Praise the Lord and I thank the Lord for this beautiful time. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है. And I'll try to speak both in Hindi and English, but because I come from a Hindi belt, probably I will share more in Hindi and will also try to explain in English. As we go into the Word of God, we know that the Word of God speaks to us in different situations, in different scenarios. And every time the word of God refreshes us. परमेश्वर का वचन हमेशा हमें अलग अलग तरीकों से बात करता है और परमेश्वर का वचन हमेशा हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम परमेश्वर के वचन को जान सकें. Every pastor has a dream. हर पास्टर का एक सपना होता है. Every believer has a dream. हर believer का एक सपना होता है. And that dream is my church should become the best church. हर एक विश्वासी हर एक पास्टर का एक ही सपना होता है और वो सपना यह है कि उसकी कलीसिया दुनिया की सबसे खूबसूरत कलीसिया होनी चाहिए. उसकी कलीसिया सबसे अच्छी होनी चाहिए. That his church should be the best church, his church should be the perfect church and his church should be a blessing to many people. उसका दिल का एक ही जज्बा होता है, एक ही आग्रह होता है कि मेरी कलीसिया सबसे खास कलीसिया बन पाए, मेरी कलीसिया सबसे अच्छी कलीसिया बन पाए. और when we come to the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन से आते हैं, we see so many churches in the New Testament. हम कलीसिया बहुत सारी कलीसियाओं के बारे में नए नियम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं और हम इस प्रकार से देखते हैं कि हर एक कलीसिया का अपना अलग अलग गुण था. Each church had a different quality. हर एक चर्च के पास में अपने अलग अलग गुण थे, अलग अलग क्वालिटी थी. एंड दिस मॉर्निंग और आज सुबह के वक्त में हम लोग 3 कलीसियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम ये ट्राइंग टू ड्रॉ what were the 3 distinct qualities of these 3 churches. इन 3 कलीसियाओं के क्या अलग अलग क्वालिटीज हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज मनन करेंगे और हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में पढ़िएगा. आज 3 कलीसिया को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं और ये 3 कलीसियाएं जिनके बारे में हम लोग नए नए में पढ़ते हैं ये मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं और उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपके सामने बताकर हम लोग प्रार्थना करके हम लोग यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे. सबसे पहली कलीसिया जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है जेरूशलेम चर्च. द जेरूशलेम चर्च. एंड वी ऑल नो दैट जेरूशलेम चर्च वेंट थ्रू सो मेनी डिफिकल्टीज. जो यरूशलेम की कलीसिया है वो बहुत सारे मुश्किलों से होकर गई, वो बहुत सारी परेशानियों से गई, वो बहुत सारे तकलीफों से होकर गई. लेकिन एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी है जो यरूशलेम चर्च को बाकी चर्चों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है. There's a distinct quality in Jerusalem church that makes Jerusalem church a very different church from all the churches, and that quality was Jerusalem church was a church of prayer. यरूशलेम की कलीसिया एक प्रार्थना की कलीसिया थी. यरूशलेम की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो प्रार्थना के अंदर जो समय को बिताती थी और उसी कलीसिया के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं. वी ऑल नो, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जिसे कहते हैं स्वर्गारोहण के बाद में हम जानते हैं कि यीशु मसीह के जो 11 चेले थे और मरियम और बाकी दूसरे कुछ चेले जो थे उन्होंने एक साथ मिलकर इस कलीसिया की स्थापना की थी और इन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से एक चीज को सीखा जो वो खुद सीखना चाहते थे, एंड दैट वाज लॉर्ड टीच अस टू प्रे. दे वांटेड टू नो something from the Lord. They did not ask the Lord to teach them to preach. They did not ask the Lord to teach them to heal. But one
thing that they asked the Lord to teach them was prayer. और प्रभु यीशु मसीह ने इनको प्रार्थना करना सिखाया. And these disciples or the founding members of the Jerusalem church, they knew that prayer is powerful. They knew that prayer will help them to move ahead in missions. They knew very well that it is the prayer that is going to do miracles not only in their lives but also in the life of believers. So we know that they become a praying church. और हम इस बात को समझते हैं और इस बात को हम जानते हैं कि यरूशलेम की जो कलीसिया है वो एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन गई. And look at what the word of God says when you come to Acts chapter 1 verse 14. The word of God says they all joined together constantly in prayer along with the women and Mary the mother of Jesus and with his brothers. हम इस प्रकार से हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं. जब पहला अध्याय उसके 14 वाक्य में वहां पे लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर, परमेश्वर का वचन कहता है, वो प्रार्थना में लग गए. So they are about to start the church. The church, or I should say the church has already started. They did not go out to preach. They did not go out for evangelism. They did not go out to do anything. But one thing that they all did was they all came together in prayer. वो सब एक साथ मिलकर, परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने क्या किया? वो लोग प्रार्थना में लगे रहे. वो प्रार्थना में लगे रहे. And then you come to Acts chapter 1 verse 24. The word of God says, again they prayed. Now they are planning to choose one person in place of Judas Iscariot. हम इस प्रकार से देखते हैं, Judas Iscariot की जगह पर एक व्यक्ति को वो चूज करने वाले हैं. और हम इस प्रकार से देखते हैं, what did they do? Verse 24 says, then they prayed. And then they prayed. वहां पे परमेश्वर का वचन 24 में लिखा हुआ है, और उन्होंने वहां पर क्या किया? उन्होंने प्रार्थना को किया. So when the church started, they are praying. When they want to choose an elder, they are praying. जब वो एक व्यक्ति को चुनना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं. They are praying. As you move ahead, हम इस प्रकार से देखते हैं, जब आप आगे चलते हैं, वहां पे when you come to chapter 2 and when you come to verse 42, the word of God says they devoted themselves to apostles' teaching, to fellowship, to breaking of bread and to prayer. जब आप 2 के 42 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में वो लीन रहे. चर्च स्टार्ट हो रहा है, they started praying. उसके बाद देखते हैं, when they wanted to choose an elder, they prayed. And after that, few disciples had joined them, few believers had joined them. Now the number is around 3,000, more than 3,000. And the word of God says, one thing that they did, and they did always, was they prayed. उन्होंने प्रार्थना किया. इसका मतलब prayer has become the lifestyle. When you come to chapter 3 verse 1, the word of God says that Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. पतरस और यूहन्ना वो लोग प्रार्थना के समय में मंदिर की तरफ वो लोग अपनी यात्रा को कर रहे हैं. So prayer has become an indispensable part of their life. प्रार्थना उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया. वो एक ऐसा अंग बन गया जिसको वो किसी भी तरीके से अपने जीवन से अलग नहीं कर पाते. When you come to chapter 4 verse 24, the word of God says they were persecuted. They were persecuted, and even when they were persecuted, look at what are they doing. वहाँ पे इस प्रकार से देखते हैं, verse 24, when they heard this, they raised their voice together in prayer to God. If you go to the background of the chapter, we know that Peter and John, they are before the Sanhedrin, and वहां पर वो लोग वहां पर महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना खड़े हुए हैं, और वहां पर भी एक चीज जो वो लोग कर रहे हैं वो है वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं. They are persecuted, they are tortured for the sake of Christ, but one thing that they do in chapter 4 verse 24, the word of God says, when they heard this, they raised their voice together in prayer to God, and they started praying. 4 के 24 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है कि ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र में जो कुछ है उसको बनाया है. So we see what are they doing? वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग प्रार्थना कर रहा है. Then come to chapter 6 verse 4, the word of God says the apostles, they are
telling the people, apostles वहां पे, प्रेरित वहां पे लोगों को बोल रहे हैं, oh please don't let us to do all these work, serving work, that work and this work. Please allow us to spend time in prayer and the ministry of the word of God. उन्होंने इस प्रकार से बोला कि आप लोग हमको ये जो भोजन बांटने का काम है उसमें आप ना लगाएं, लेकिन एक काम जिसमें हम चाहते हैं कि हम लौलीन रहना चाहते हैं, हम प्रार्थना करना है. So when there's a time to make a choice, what are they doing? They are praying. वो लोग बोल रहे हैं हमें प्रार्थना करने दीजिए. मुझे हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे काम हैं जो हमें करना चाहिए, लेकिन हम इनमें से किसी भी चीज की तरफ अपने ध्यान को नहीं लगाना चाहते. लेकिन एक चीज जिसके लिए हम लोग टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं, एंड दैट इज प्रेयर, कि हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं. और अगर आप उसके आगे चल के पढ़ोगे, we see they choose 7 among them, और वो 7 को वहां पे वो चुनते हैं. और वहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि एक चीज जो वापस से उन लोगों ने किया, that is they prayed. उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां पर प्रार्थना किया. Verse 6 says they presented these men to the apostles who prayed and laid their hands on them. So again they are choosing another group of people, and what are they doing? The word of God says they prayed. उन्होंने प्रार्थना किया. Now when you come to chapter 7 verse 59, the word of God says there's a man named Stephen and he's about to die. और परमेश्वर का वचन कहता है what did he do? He prayed. उसने क्या किया? उसने प्रार्थना किया. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने क्या किया? उसने प्रार्थना किया. When you come to chapter 12, the word of God says that Peter was in jail, but the Bible clearly says, chapter 12 verse 5, Acts chapter 12 verse 5, the word of God says the Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. प्रेरितों का काम उसका 12वां अध्याय उसके 5वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पतरस जेल में था, बंदी गृह में था, लेकिन कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से क्या कर रही थी? परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी. Church was praying. My dear friends, hallelujah. Here we see a praying church. The church in Jerusalem was a praying church. Church of Jerusalem was a praying church. They prayed in difficult situation, in the happy moments, when they were filled with the Holy Spirit. In all these moments, whichever moment was there, the Lord has planted in their life, we see that they become people who prayed again and again, who prayed unceasingly. And this morning time, I want to challenge you from the word of God and from the life of the Jerusalem church that the Lord wants us. The Lord wants all of us. The Lord wants our churches to be praying church. The Lord wants us to be the church of Jerusalem, the church that prays together. This morning times, let me ask you, your church may be known for the best worship. Your church may be known for the best preaching. Your church may be known for so many things. But one thing for which your church should be known for is prayer. एक चीज जिसके लिए आपकी कलीसिया को जाना चाहिए, जिसके लिए आपकी कलीसिया को माना जाना चाहिए, जिसके लिए आपकी कलीसिया की लोग बड़ाई करना चाहिए, वो है प्रार्थना. क्योंकि प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि प्रार्थना के अंदर बहुत ताकत है. और मैं बोलना चाहता हूं, प्रार्थना चीजों को बदल सकता है. Prayer can change situation. Prayer can change any situation. Prayer can turn any situation upside down. And that is what we see in the book of Acts and from the life of the Jerusalem church. They were a group of people who prayed in all situations, who prayed in all seasons, who prayed in all circumstances. And this morning time, I want to challenge you. I want to challenge you as a church. I want to challenge you as a congregation. Are you a praying church? Are you a praying church? Is prayer the priority of your church? Are you a group of people who pray to the Lord to do wonders in the city where the Lord has placed you, जहाँ पे परमेश्वर ने आपको रखा है? And that is what my prayer is. और मेरा जो प्रार्थना है वो यही है कि परमेश्वर आपकी कलीसिया को एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया बना पाए. और मैं बोलना चाहता हूँ, प्रार्थना करने वाली कलीसिया एक ताकतवर कलीसिया है.
praying church is a powerful church. Praying church is a forceful force in this world. प्रार्थना करने वाली कलीसिया एक बहुत ही ताकतवर सामर्थ है। और किसी ने इस प्रकार, परमेश्वर के एक दास ने इस प्रकार से कहा कि that the local church is the hope of the world. जो लोकल कलीसिया है वो उस जगह की आशा है। और मैं बोलना चाहता हूं, आपकी जो लोकल कलीसिया है, अगर वो प्रार्थना करने वाली कलीसिया है, प्रभु ने चाहे आपको जहां कहीं भी रखा हो, मैं बोलना चाहता हूं प्रभु की आशीष आपके जीवन के द्वारा होगा, आपकी कलीसिया के द्वारा होगा। हमारे पास कितना खूबसूरत बिल्डिंग है वो मायने नहीं रखता है, हमारे पास कितने ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मायने नहीं रखता है, हमारे पास कितने अच्छे गायक हैं, कितने बढ़िया प्रचारक हैं वो मायने नहीं रखता है। लेकिन एक चीज जो मायने रखता है वो ये है, हमारे पास में जो लोग हैं वो कितना प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो कितना प्रार्थना करते हैं। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि आप एक ऐसी कलीसिया बनने पाए जो निरंतर प्रार्थना करे। और प्रेरितों के काम में हमने देखा यरूशलेम की कलीसिया, जो शायद एक छोटे ग्रुप ऑफ मछुआरों के द्वारा चालू की गई थी, जिनके पास में ज्यादा शिक्षा नहीं थी, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और शायद ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी नहीं थे। लेकिन परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, एक चीज जो उनके पास में थी और वो ये था कि वो लोग बहुत ही प्रार्थना करने वाले लोग थे। और उसी प्रार्थना ने ना केवल उनके जीवन को बदल के रखा, उनके कलीसिया के जीवन को बदल के रखा, पूरे यरूशलेम को बदल के रखा। और हम इस प्रकार से देखते हैं हर जगह के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य हुआ, और वो केवल इसलिए क्योंकि उनके पास में जो लोग थे वो प्रार्थना करने वाले लोग थे। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, क्या आप प्रार्थना करेंगे? क्या आप कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेगी? क्या आप अपने पास्टर के साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे? और मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना करेंगे, मैं बोलना चाहता हूं परमेश्वर जहां कहीं भी आप हैं, जिस जगह में आपकी कलीसिया है, परमेश्वर उसको बदल। तो पहली चीज जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं वो ये है कि आपकी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया होने पाए। आपकी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया होने पाए जो प्रार्थना कर सके। दूसरी चीज जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं वो ये है कि ना केवल आपकी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया होने पाए, लेकिन आपकी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया होने पाए जो परमेश्वर के वचन के अंदर लीन होने पाए और परमेश्वर के वचन के अंदर एकदम स्थिर खड़ी होने पाए। अ चर्च दैट इज so much established in the word of God, the church that is so much into the word of God। और उसी चीज के बारे में मैं एक कलीसिया का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। I want to share with you an example of one of the churches like that. When you come to Acts chapter 17 and when you read from verses 11 onwards, the word of God says, now the Berean Jews were more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness. And the word of God says, and examine the scriptures every day to see if what Paul said was true. As a result, many of them believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, अगर आप मेरे साथ में निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 11 और 12 वाक्य को मैं एक बार आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। हमें परमेश्वर वचन कहता है, ये लोग जो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने, यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। Now we all know, हम सब जानते हैं कि here the word of God is talking about the Berean church। यहाँ पे जो परमेश्वर की जो वचन है वो बिरिया की कलीसिया के बारे में बात कर रही है। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है that the Berean Jews were more noble character than those in Thessalonica। So here we see a comparison is being made। यहाँ पे हम इस प्रकार से देखते हैं कि वहां पर एक तुलना किया जा रहा है। और जब आप इस तुलना के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है they are being compared to the people in Thessalonica। वहां पे जो थेसलोनिका के लोग हैं उनके साथ में क्या किया जा रहा है, उनके साथ में उनको कंपेयर किया जा रहा है।
And when they are comparing, look at what the word of God says. They are not being compared by the riches that they have. They are not being compared by the building that they have. They are not being compared by the music system that we have. आप सोचिए, ना तो उनकी बिल्डिंग से कंपेयर किया जा रहा है, ना उनके पास में कितना अच्छा म्यूजिक सिस्टम है उससे. But look at what the word of God says, that they were more noble than the Thessalonican church. वहां पे लिखा है कि वो जो थेसलोनिका के लोग थे उनसे भी वो बहुत भले थे. Why? क्यों भले थे? क्यों? What was that one thing that made them different from the other churches? एक ऐसी चीज उनमें क्या थी जो दूसरे कलीसियाओं से उनको बिल्कुल अलग बनाता था? और वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see what Paul said was true. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो लोग भले थे. और वो क्यों भले थे? क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है, बड़ी लालसा से वो क्या करते थे? वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहते थे कि ये बातें यूं ही नहीं है. My dear friends, these days we are exposed to so many teachings. हम लोग बहुत सारी शिक्षाओं को हम लोग देखते हैं. We watch videos on YouTube. हम YouTube के अंदर देखते हैं. हम लोग अपने WhatsApp के अंदर there are so many videos that are sent across to us. बहुत सारे videos को we see every day on our WhatsApp, on YouTube and on Facebook and so many other platforms. हम देखते हैं. And sometimes I will tell you that sometimes many of these videos may be misleading. बहुत बार कभी कभी हमें गलत शिक्षाएं भी दे सकती है. There is a group of people who believe on hyper grace, who tell everybody कि आपको जो चाहिए आप करो, जैसा जीवन चाहे आप जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रभु ने आपके सारे अपराधों को क्षमा कर लिया है. And many times, let me tell you, बहुत सारे वीडियोस को हम देखते हैं, वो हमारे इंडियन सोसाइटी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कभी भी वो जो शिक्षाएं दे रही है वो कभी हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे भारत के पृष्ठभूमि में, हमारे भारत के कॉन्टेक्स्ट में वो कभी भी प्रभावी नहीं रहता है. And many times we are confused and we do not know what to do. Many times we go back in our faith. हम लोग अपने विश्वास में पीछे हट जाते हैं और कई बार हम लोग बड़े ही दुख भरे हुए समय से होकर हम लोग जाते हैं. बड़े दुख से हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए. Now look at what the word of God says, that the Berean Jews were more noble. जो बिरिया के जो यहूदी लोग थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका कैरेक्टर बहुत ही नोबल था. देखो, बहुत भले लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे. क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर के वचन को न केवल ग्रहण करते थे, not only they eagerly receive the message, but the word of God says they examine the scriptures every day to see what Paul said was true. तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते थे और वो देखते थे कि पौलुस ने जो कहा है वो सही है या नहीं है. Now I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कितने ऐसे हैं जो वापस जाकर अपने वचनों में पढ़ते हैं, जो वचनों को जाके पढ़ते हैं? How many of us read the word of God? हम में से कितने परमेश्वर के वचन को हर रोज मनन करते हैं? हम में से कितने जने हैं जो परमेश्वर के वचन के प्रति एक जलन को रखते हैं कि मैं हर रोज जाकर परमेश्वर के वचन को पढूं? When you come to Psalm 1, the word of God says like this in verse 2, but who delights in the law of the Lord? Blessed man is the one who delights in the law of the Lord and meditates on his law day and night. परमेश्वर का वचन भजन संहिता 1 उसके 2 में इस प्रकार से कहता है कि वे उस पुरुष के समान है जो परमेश्वर के वचन को दिन रात क्या करता है? मनन के करता है. धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है? दिन रात मनन करता है. और मैं बोलना चाहता हूं, बिरिया के जो कलीसिया के लोग थे वो परमेश्वर के वचन को मनन करने वाले लोग थे, एग्जामिन करने वाले लोग थे. They were so much founded on the word of God. In verse 12 it says, as a result, many of them believed, as did also number of prominent Greek women in many. उससे हुआ क्या? What happened when they were
when they received the word of God and they went back and examined the scripture, walked according to the word of God, the Bible says many people believed on the word of God because of their receiving of the word of God, because they stood fast on the word. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में स्थिर खड़े रहे, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे लोगों ने उन पर विश्वास किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, आर यू लाइक द बीरियन चर्च? क्या आपकी कलीसिया बीरिया की कलीसिया के समान है, जो परमेश्वर के वचन पे आधारित है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ती है? ऐसा नहीं एक वीडियो वहां देख लिया, फिर दूसरा वीडियो वहां देख लिया और आपको नहीं पता, जो आप खुद परमेश्वर के वचन को जाके पढ़ते हैं कि पास्टर साहब ने जो प्रचार किया, क्या उस बात में क्या गहराई थी, पास्टर साहब हमसे क्या कहना चाहते थे, परमेश्वर की आत्मा मुझसे क्या कहना चाहती थी। मैं बोलना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को आप मनन कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में ताकत है और परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर करता है। तो प्रेरितों का काम उसके 17 अध्याय में इस प्रकार से देखते हैं that they were of noble character than those in Thessalonica because they received the message with great eagerness and examined the scripture every day to see what Paul said was true, ताकि वो देख सके कि जो पौलुस ने कहा है वो सही है या नहीं है। So once again I want to remind you, क्या आपका चर्च यरूशलेम के चर्च की तरह प्रार्थना करता है? क्या आपका चर्च बिरिया के कलीसिया के समान परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करता है? Is your church like a Jerusalem church that prays in all seasons, that prays in all situations and circumstances? Is your church like a Berean church? क्या आपकी कलीसिया बिरिया कलीसिया के रूप में है, जो हर समय जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ती है और सुनती है, उसको एग्जामिन करती है, उसको अपने जीवन में लागू करती है और कोशिश करती है कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूं? होने पाए आपकी कलीसिया अपनी बिल्डिंग के लिए नहीं, आपकी कलीसिया आपके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए नहीं, आपकी कलीसिया आपके टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, लेकिन आपकी कलीसिया जानी जाए परमेश्वर के वचन के लिए। आपकी कलीसिया जाने जाए क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। So I want to encourage you, my dear brothers and sisters, let your church be a church that is known not only for prayer but also being deeply rooted in the word of God, और जो परमेश्वर के वचन में बहुत ही गहराई से उतरी हुई है और परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहराई से पालन करती है। एक और कलीसिया को I want to bring forward one more church in front of you, मैं एक और कलीसिया को आपके सम्मुख लेके आना चाहता हूँ, और वो कलीसिया और कोई नहीं, अगर आप मेरे साथ में निकालेंगे दूसरे कोरिन्थियों 2 Corinthians chapter 8, and let me read from verses 1 to 5. 2 Corinthians chapter 8, and we will read from verses 1 to 5. हम लोग उसका 1 से लेकर 5 तक हम लोग जिसे कहते हैं, मैं आप लोगों के सामने मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। I want to read in front of you. The word of God says, and now brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian church. In the midst of very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. The Bible says, for I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people, and they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord and then by the will of God also to us. परमेश्वर का वचन इस प्रकार दूसरे कोरिन्थियों में कहता है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया में हुआ, कि क्लेश के बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में ये गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, पर उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। Now here we see another beautiful church and a characteristics of another wonderful church
And the word of God says they were givers. वो देने वाले लोग थे. And we are talking about the Macedonian church. हम लोग मकीदुनिया की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं. And look at what the word of God says. परमेश्वर का चर्च, परमेश्वर कलीसिया इस प्रकार से कहता है. When you read verses 5, जब आप 5वें वाक्य को पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन कहता है, they gave themselves first of all to the Lord. उन्होंने सबसे पहले क्या किया? अपने आप को प्रभु को दे दिया. And then after that, उसके बाद उन्होंने प्रभु को दिया. They gave to the Lord. उन्होंने अपने आप को प्रभु को दिया. उसके बाद उन्होंने दिया. Now, I want to come to this Macedonian church. They were great givers. वो प्रभु को देने वाले लोग थे. Were they rich? No. Bible ऐसा नहीं कहता है. Look at what the word of God says. In midst of very severe trial, they were being persecuted, and their overflowing joy, their extreme poverty, welled up in rich generosity. Bible says that in their extreme poverty, welled up in rich generosity. They were extremely poor. They're going through an extremely difficult situation of their life. वो बहुत ही गरीब थे और वो अपने जीवन के अंदर बहुत ही मुश्किल भरे परिस्थितियों से जा रहे थे. They were not having a good time because they were afflicted. They were going through great trial. And look at what the Bible says, that they were going up in extreme poverty. In midst of this extreme poverty, in midst of this great trial, in midst of this affliction, इस गरीबी के अंदर, इस सताव के बीच में, इन सारी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर को दिया. They gave. Sometimes we think, कभी-कभी हम सोचते हैं, Pastor, one day when we become rich, we are going to give to the Lord. जिस दिन मैं अमीर बनूंगा, मैं प्रभु को दूंगा. लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उन्होंने अपनी गरीबी के बीच में, जब वो गरीब थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर को दिया. They gave to the Lord when they were very poor, when they went through the most difficult situation of their lives. परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रभु को दिया. They gave to the Lord. उन्होंने प्रभु को दिया. कब दिया? उनकी गरीबी के बीच में. मेरे प्रिय लोगों, a child learns to walk when he is small. जब बच्चा छोटा होता है तब वो चलना सीखता है, बड़ा होके नहीं. आप कभी भी अमीर बनेंगे तब नहीं. देना एक आदत है. Giving is a habit. Giving does not depend upon the amount of money that you have in your pocket. Giving depends upon your heart. Give from your heart, and that is what we see in 2 Corinthians chapter 8. What does the word of God says? In midst of their severe trial, they were going through severe trial. In midst of their extreme poverty, and beyond their ability, entirely on their own, they willingly and joyfully gave to the Lord. परमेश्वर को उन्होंने खुशी के साथ में देखा. And look at what the word of God says. They pleaded with us for the privilege of sharing the service to the Lord's people. They pleaded, oh, let us share that burden of serving the Lord's people. They were pleading. आजकल जब हम लोग देते हैं तो हमको लगता है कि नहीं पास्टर वैसे करना चाहिए, वैसे. यहाँ पे परमेश्वर मुझे कहते हैं प्लीडिंग, प्लीज हमें देने दो, प्लीज हमें देने दो. वी वांट टू गिव. दे वर प्लीडिंग, प्लीज लेट अस गिव. हमें देने दीजिए. बिकॉज दे न्यू दैट इट इज अ प्रिविलेज. It is a privilege to share in the service of the Lord's people. क्योंकि वो जानते थे कि वो उनके लिए एक सौभाग्य है. मेरे प्रिय लोगों, प्रभु को देना कभी भी बर्डन नहीं है. प्रभु को देना कभी भी दर्द के साथ नहीं होना चाहिए. ये हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु को दे पा रहे हैं, प्रभु के कार्य के लिए दे पा रहे हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे पा रहे हैं. मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु की आशीष आपके ऊपर आएगी, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा और प्रभु आपको बहुतायत से प्रभु क्या करेगा? प्रभु आपको आशीष देगा. प्रभु आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा.
जब आप प्रभु को देना शुरू कर देंगे। क्योंकि मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु को देना, गिविंग टू द लॉर्ड इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, एक बहुत बड़ी आशा है, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। टुडे माय प्रेयर इज लेट योर चर्च बी अ प्रेइंग चर्च लाइक द जेरूशलेम चर्च। आपकी कलीसिया यरूशलेमी कलीसिया के समान होने पाए, जो प्रार्थना करने वाली है। लेट योर चर्च बिकम लाइक अ बिरियन चर्च that is so much rooted and established in the word of God. Let your church become like a Macedonian church that gives to the people of God, जो परमेश्वर के लोगों को देखता है। Not like a burden, उसको किसी burden के रूप में नहीं, लेकिन उसको एक सौभाग्य के रूप में। I just want to share a testimony about giving from my own life. When I came to Jaipur, जब मैं जयपुर में आया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, I was not living with my parents. मैं अपने माता पिता के साथ में नहीं रहता था। मैं एक अलग जगह पर किराए के एक मकान के अंदर I was staying. And when I was in that place, और जब मैं उस जगह पे था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, I used to teach in a Bible college. मैं एक Bible college में पढ़ाता था. And I used to get a very small amount of 3,000 rupees. मुझे 3,000 रुपये मिलते थे. और उसमें से भी मैं प्रार्थना करता और 1,000 रुपये मैं हटा के परमेश्वर की सेवकाई के लिए रखता था as tithe. My rent was 1,500 rupees. Rest amount that was there in my hand was 500 rupees. मुझे बिजली का बिल भरना है, मुझे पेट्रोल लेना है, और मुझे अपना राशन का पूरा इंतजाम करना। All these things were there. I won't tell you, but still, I said, God, this is how I want to do. मैंने किया. And I did not have anyone to help me. Then came a small tuition, English tuition, where I used to get only 300 rupees. And I started taking that tuition. I said one thing to the Lord. मैंने प्रभु से एक बात बोला, प्रभु, for my personal needs, I'm not going to go in front of anyone. मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा. I want you to work in my life in a miraculous way. And I will tell you, God opened the doors from that one tuition. Within that span of time, where I used to take my afternoon rest, I started getting 10 tuitions. God started meeting all my needs. Praise the Lord. Why? Because when we become faithful in small things, God becomes faithful in our lives. God becomes faithful in our lives. And this is a story for everyone. Those who gave, they saw the supernatural hand of God. उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत हाथ को देखा। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, be like a Macedonian church. Don't take it as a burden. Don't take it as a burden. It's a privilege. It's a privilege that the Lord has given to us. As you listen to me, before we pray, would you like to submit yourself? Yes, Lord, I want to submit myself. I want to come unto your presence. I want to be like this Jerusalem church. My church should be like this Jerusalem church. A church of prayer. My church should be like this Berean church, deeply rooted in the Word of God. People who not only accept the Word of God, but people who go back and see and learn and meditate. I want my church to be like Macedonian church. A church that gives. A church that considers giving as a privilege. May the Lord bless you. And may the Lord help you. And may the Lord be with you and strengthen you to move forward. Let me pray for you. मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। And we want to thank you, Lord, for this beautiful time. प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर, आपने हमें बुलाया है ताकि हम सबसे खूबसूरत कलीसिया बन सकें। We want to be like the Jerusalem church that prays in all situations and in all circumstances, in all seasons. We want to be like the Berean church that is so deeply rooted in the Word of God, that receives the Word of God and examines the Word of God. Father Lord, we may examine the Word of God for all the answers and all the questions of our life. Father Lord, we want to also thank you. Father Lord, make us
like the Macedonian church. हमें मकीदुनिया की कलीसिया के समान बनाइए, जो देने वाली कलीसिया हो, जो आपके लिए देती हो, आपके नाम के लिए देती हो. Thank you, Jesus. We give you glory, honor and bless your name. आपने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से. Amen. Amen. May God bless you. I would like to thank Pastor Alvin and the whole team and the church for giving me this privilege to speak to you. God bless all of you. Take care, everybody. God bless you. Let us pray together. Father, we thank you, Lord, for your wonderful word, Father. Your encouraging word, Father. We thank you, Lord, for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद. आपके इस सामर्थी वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आज आपने हमसे बात करी, उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद. All those who are watching us right now, Father, all those who have heard your words today, let their lives be transformed, Father. Let them be encouraged by your word, Father. उनका जीवन परिवर्तित होने पाए और परमेश्वर आपके वचन के द्वारा परमेश्वर वो प्रोत्साहित होने पाए. प्रभु सारा आदर महिमा यीशु केवल और केवल आपको देते हैं. जितने लोग प्रभु जी आज हमारे साथ जुड़े, उन सभी को आप आशीषित करिए. Bless each one of them, Lord, I pray. And let this coming week, this first day of this week, be a start of new favors and new blessings, Lord, in the name of Jesus. ये नया हफ्ता परमेश्वर जो शुरू हो रहा है, ये आशीषों की एक नई शुरुआत होने पाए इनके जीवन में. प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं. सभी लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं. Bless us together, Lord. In Jesus' name, Lord, I pray. Amen. Let us now receive the benediction. May the grace of the Lord, love of the Father, and communion of the Holy Spirit be with each one of us till our Lord Jesus comes. And the church may say, Amen, Amen, Amen. God bless you all. Have a blessed week ahead. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. हम आशा करते हैं कि आज की सभा से आप और आपका परिवार आशीषित हुए हैं. We believe that today's service was a blessing to you and your family. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. We are praying for you. फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर हमारी ऑनलाइन सर्विस में जुड़े, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें. Join us in our online services at our Facebook page and YouTube channel. Do subscribe and share it with your friends. स्क्रीन पर दिए गए संपर्क विवरण पर अपनी गवाही एवं प्रार्थना निवेदन हमारे साथ बांटें. Please share your testimony and prayer request by reaching us through the contact details displayed on the screen. परमेश्वर आपको आशीष दे. आने वाला सप्ताह आपके लिए आशीषित हो. God bless you and have a blessed week ahead.